Hello viewers, you are welcome in Political Science class. मैं डॉक्टर कुलदीप सिंह पॉलिटिकल साइंस से संबंधित एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित हूँ। यह टॉपिक दरअसल में इंडियन पॉलिटी से संबंधित है, या यूं कहें कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और जिसका नाम है फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार किसी भी नागरिक के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार होते हैं। यही कारण है कि उन्हें संविधान में दर्ज किया जाता है, संविधान में वर्णित किया जाता है, ताकि नागरिकों की स्वतंत्रता और उनके लिए तमाम व्यवस्थाएं की जा सकें, उपयुक्त माहौल बनाया जा सके, ताकि वो अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें और उनके व्यक्तित्व के विकास में कोई अवरोधक या कोई रोड़ा सामने ना आए और वो अपने आप को, अपने जीवन को बेहतर बना सके। तो लेट्स स्टार्ट डिस्कशन on fundamental rights. Fundamental rights are important part of Indian Constitution, which are provided in Part 3 from Article 12 to 35. There are provisions regarding fundamental rights in Indian Constitution under Articles 12 to 35. As far as fundamental rights itself are concerned, they are given under Article 14 to 32. So we will discuss them one by one. First of all, we will discuss the article that gives importance of supremacy to the fundamental rights over all laws or customs or traditions which were in fashion before commencement or application of the Indian Constitution in 1950 and after that. Here it is the Article 13 which clearly makes fundamental rights supreme. Under this article, it has been provided that no law or tradition or custom can breach fundamental rights. It means fundamental rights are supreme over any law or tradition or custom which is not inconsistent with fundamental right, which is derogatory to fundamental rights. कहने का मतलब है कि फंडामेंटल राइट सुप्रीम है, सर्वोच्च है, और किसी भी कानून या किसी भी परंपरा या प्रथा के द्वारा फंडामेंटल राइट्स को
वायलेट नहीं कह सकता, उसको भंग नहीं कह सकता। कोई भी ऐसा नियम या कानून जो फंडामेंटल राइट्स को क्षति पहुंचाता है या उसे कहीं ना कहीं कोई नुकसान पहुंचाता है, तो वह कानून और परंपरा जारी नहीं रह सकती, क्योंकि वह फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है। In other words, we can say that laws or customs inconsistent with or in derogation of the fundamental rights have been struck down and declared null and void under Article 13. So here it is very clear that any law or custom that is inconsistent with or in derogation of the fundamental rights has been struck down by the Indian Constitution, and such laws or customs have been declared null and void. उन्हें बिल्कुल अवैध और शून्य घोषित कर दिया गया कि कोई भी ऐसा नियम या कोई भी ऐसा कानून, कोई भी ऐसी परंपरा, चाहे वो धार्मिक परंपरा ही क्यों ना हो, अगर किसी फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जाती है तो वह शून्य मानी जाएगी। ये व्यवस्था 26 जनवरी और 1950 से लागू हो गई। इसको हम और अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि भाई आर्टिकल 13 का जो कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है वो क्या है। तो लेट्स सी, आर्टिकल 13 provides all laws in force in the territory of India immediately before the commencement of this constitution, insofar as they are inconsistent with the provisions of this part, means fundamental rights. Part 3 shall, to the extent of such inconsistency, be void. कहने का मतलब है कि सभी कानून जो भारत क्षेत्र में लागू हैं, वो संविधान के लागू होने के बाद पूरी तरह से शून्य और अवैध घोषित हो जाएंगे यदि वो किसी भी तरह से फंडामेंटल राइट्स को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनके फंडामेंटल राइट्स के साथ वो इनकंसिस्टेंट हैं या फिर उनके प्रति डेरोगेटरी हैं। सेकंड प्रोविजन है, तो ये बहुत बड़ा, दिस वाज एन अटैक ऑन दी यू कैन से द फंडामेंटलिस्ट्स और द ऑर्थोडॉक्स पीपल who wanted some traditions or laws which were you can say religious or of religious nature, and such laws inhuman in nature, or they violated today's fundamental rights, the rights which have been provided by Indian Constitution. So such laws were struck down by Indian Constitution in 1950. Another provision under Article 13 is, the state shall not make any law. पहला प्रोविजन तो यह है कि उस वक्त जो कोई भी कानून जो चल रहा है 1950 में, 26 जनवरी 1950 तक लागू होने से पहले जो कानून या कोई प्रथा या कोई परंपरा चली आ रही है, वह वाइड घोषित होगी, वह नल घोषित होगी, शून्य घोषित होगी यदि वो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करती है। तो दूसरा प्रोविजन यह है कि स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ
which takes away or abridges the rights conferred by this part, means the part 3, that is the fundamental right. And any law made in contravention of this clause shall, to the extent of the contravention, be void. कहने का मतलब ये है कि स्टेट भी कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो किसी भी रूप में या तो फंडामेंटल राइट्स को छीनता है या उन्हें कुछ नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, ऐसा कोई भी कानून या तो पूरी तरह से या उसका वह हिस्सा जो फंडामेंटल राइट्स को कमतर करता है या उसे कोई क्षति पहुंचाता है, वो अवैध घोषित होगा और वह शून्य होगा। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोविजन। अगर हम इस प्रोविजन को इस तरह से देख सकते हैं कि ये प्रोविजन भारत के संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोविजन है, क्योंकि यह प्रोविजन इट expressively provides for the doctrine of judicial review. We have a doctrine of judicial review. No doubt to say that there is no provision of judicial review in Indian Constitution, but we have a doctrine, such doctrine in our Constitution, which gives judiciary to right or power to safeguard the fundamental rights, and on this basis judiciary gets authority or power to strike down any law made by the legislature or any executive action null and void if it violates the fundamental rights. It means the fundamental rights are supreme. It means the state cannot make any law that can snatch or takes away the fundamental rights from the citizens. इस तरह से यही व्यवस्था, अगर हिंदी में हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि अनुच्छेद 13 इस तरह से प्रबंध करता है, उपबंध करता है कि इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां यानी कि कानून उस सीमा तक शून्य होंगी जिस सीमा तक वे इस भाग के उपबंधों से असंगत है। इस भाग का मतलब फंडामेंटल राइट्स वाला जो भाग है, इससे अगर वो मेल नहीं खाती है तो वो सारी की सारी विधियां, वो सारे कानून शून्य और अवैध माने जाएंगे। दूसरा प्रावधान है कि राज्य ऐसी कोई विधि या कानून नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या उन्हें न्यून करती है, कम करती है, और इस प्रकार इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगी। जितना वो नुकसान पहुंचाती है, जितना उल्लंघन करती है, उस सीमा तक वह शून्य मानी जाएगी। So this is the very important article 13, which makes fundamental rights supreme over any law or the statute or order passed by the government or the executive, which is against the fundamental right. Okay, let's discuss what are the fundamental rights and which rights have been provided in Indian Constitution. What is their importance? Let's see. So there are 6 fundamental rights which have been provided under Article 14 to 32. First article is right to equality, जिसको हिंदी में समानता का अधिकार कहते हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में दिया गया है, प्रदत्त है। तो ये जो यहाँ पर एक बात मैं और इम्पोर्टेंट बताना चाहूँगा आपको कि हमारा सबसे पहला जो फंडामेंटल राइट है वो राइट टू इक्वलिटी। इट मीन्स द फ्रीडम, जो हमारे
फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था और फ्रीडम मूवमेंट के दौरान ही संविधान लिखने की एक एक्सरसाइज, एक कवायद शुरू हो गई थी और संविधान सभा इसके लिए गठित की गई थी। तो संविधान सभा ने ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा बनाए गए संविधान को स्वीकृत किया, उसे अंगीकृत किया और उस संविधान में ही सबसे ज्यादा, सबसे महत्वपूर्ण माना समानता। तो यहां पर फ्रीडम को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जितना कि समानता को दिया। तो यहां पर एक बात बहुत क्लियर है कि ये इसके लिए ये व्यवस्था, सबसे पहले हमने राइट टू फ्रीडम ना लेकर के राइट टू इक्वलिटी को लिया, तो ये दिखाता है कि यहाँ पर हमने समानता को प्रायोरिटी दी, स्वतंत्रता को दूसरे नंबर पे रखा। और इसके पीछे कॉन्स्टिट्यूशन के मेन आर्किटेक्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बड़ा योगदान रहा, क्योंकि ही वॉज वेरी मच सपोर्टर ऑफ इक्वलिटी. He gave priority to equality. That is why he gave priority to right to equality as the president of the drafting committee. First article is right to equality that has been provided under Article 14 to 18. There are you can say 5 rights: 1, 14, 15, 16, 17, 18. Under this article, these article 14 to 18, significant rights have been provided to Indian Constitution. भारत के नागरिकों को बहुत महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए और ये अधिकार सिर्फ भारत के नागरिकों को ही नहीं के लिए ही नहीं बल्कि फॉरेनर्स के लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी तरह से असमानता को स्वीकार भारत का संविधान नहीं करता है। तो आर्टिकल 14 प्रोवाइड्स दैट देयर शैल बी इक्वलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करता है कि कानून के समक्ष समानता होगी, सभी लोग कानून के समान बराबर होंगे, कानून किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। सो आर्टिकल 14 प्रोवाइड्स इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन बाय लॉ। आर्टिकल 15 prohibits discrimination. There is a provision of prohibition of discrimination. It means discrimination has been prohibited in Indian Constitution in its article 15. It means nobody will be discriminated on the basis of caste, race, gender, religion and place of birth. No one will be discriminated. No one will be prohibited on from going to public places like ponds, like parks, like restaurants, markets, etc. किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ना जाति के आधार पर, न नस्ल के आधार पर, न धर्म के आधार पर, न लिंग के आधार पर, न ही जन्म स्थान के आधार पर। आर्टिकल 16 is very important article and it provides for equality of opportunity. Equality of opportunity, अवसर की समानता। There shall be equality of opportunity to all citizens of India in education and employment.
यानी कि शिक्षा और रोजगार में सबको बराबर का अवसर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि आर्टिकल 15 और 16 में दो चीज़ें और जोड़ी गई हैं कि पहला जो है आर्टिकल 15 है कि इसमें भेदभाव की मनाही की गई है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको आगे बढ़ने के लिए बराबर के अवसर दिए जाएंगे। आर्टिकल 16 में प्रोविजन है। तो 15 के तहत ये व्यवस्था की गई कि शिक्षा के क्षेत्र में जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड पीपल हैं उनके लिए एफर्मेटिव एक्शन की व्यवस्था की गई है कि एफर्मेटिव एक्शन के तहत एक सकारात्मक भेदभाव के तहत उन्हें अपलिफ्ट करने के लिए विशेष कदम उठाए जा सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट या यू कैन से गवर्नमेंट विल डू special actions for betterment, for upliftment of the downtrodden or the people who are socially and educationally backward। ये 15 के तहत व्यवस्था है एजुकेशन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। अगर आज वर्तमान समय में शैक्षणिक संस्थानों में रिजर्वेशन है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के लिए, तो ये आर्टिकल 15(4) के तहत व्यवस्था है। आर्टिकल 15(4) में ये व्यवस्था की गई है कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। अगला जो अधिकार और आर्टिकल है वो है 16, जिसमें अवसर की समता की बात कही गई है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ इक्वलिटी की बात कही गई है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात कही गई। तो उसका साफ मानना है कि 16(4) में ये प्रोविजन जोड़ दिया गया है कि सोशली और बैकवर्ड पीपल के लिए सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, उनको रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा, उनको आरक्षण दिया जाएगा। तो ये एफर्मेटिव एक्शन के तहत ये व्यवस्था की गई है, जिसे कुछ लोग इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जैसे प्रावधान का या राइट टू इक्वलिटी का वायलेशन मानते हैं। लेकिन इस वायलेशन को पहले ही संविधान में स्वीकार कर लिया गया था, बिकॉज इट वाज नेसेसरी फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ द पीपल हु आर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो फिर वो लोग हमेशा के लिए सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड ही रह जाते। तो जैसे कि एक ऐसे मरीज को स्पेशल ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता होती है जो बहुत सीरियस है, जिसकी हालत खराब है, तो उसे हम आईसीयू में रखते हैं और आईसीयू में उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है, क्योंकि उसका जो लाइफ है वो रिस्क में होता है। देयर इज ए रिस्क टू हिज और हर लाइफ, दैट इज व्हाई ही इज रिक्वायर्ड टू बी एडमिटेड इन आईसीयू। It is necessary to give special treatment to such patient. In this way, affirmative action has been suggested for the betterment of the socially and educationally backward people. Article 17, that is the part of right to equality, is also an important article which provides for abolition of untouchability. This article, Article 17, prohibits untouchability and it makes it a punishable act, and practice of untouchability is a punishable act under Article 17. अनुच्छेद 17 ये व्यवस्था करता है कि अस्पृश्यता अथवा छुआछूत किसी भी तरह से उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा, और कोई व्यक्ति यदि उसको अमल में लाता है या उसे व्यवहार में लाता है, उसे प्रैक्टिस करता है, तो उस व्यक्ति को दंड दिया जाएगा। तो ये इसलिए है क्योंकि भारत में आज़ादी से पहले, भारत के नए संविधान के लागू होने से पहले भारत में गैर बराबरी थी, असमानता थी, जातिगत भेदभाव था,
और वो जातिगत भेदभाव का एक घृणित चेहरा था अस्पृश्यता अथवा अनटचेबिलिटी, जिसमें व्यक्ति व्यक्ति को स्पर्श नहीं कर सकता था, उसको टच नहीं कर सकता था। तो एक इनह्यूमन एक ट्रेडिशन देश में चल रही थी। उस इनह्यूमन एक्टिविटी को, इनह्यूमन प्रैक्टिस को समाप्त किया गया है अंडर आर्टिकल 17। आर्टिकल 18 मेक्स प्रोविजन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ टाइटल्स, यानी किसी भी तरह के कोई टाइटल्स लोगों को नहीं दिए जाएंगे एक्सेप्ट दी सिविल अवार्ड्स और द मिलिट्री अवार्ड्स, लाइक सिविल अवार्ड्स लाइक भारत रत्न, पद्म श्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण. These are the civil awards which are granted by the President of India to the people for playing important role in social welfare or in the field of science or in the field of sports or literature, etc. And some military awards are also given to the military men, the people related with military, like Paramveer Chakra, that is the supreme award as far as military is concerned. Paramveer Chakra, then Ashok Chakra, Mahavir Chakra, Shaurya Chakra, etc. These are the military awards. Except these awards, no other title will be given to any citizen of India.